नमस्कार, स्वागत है न्यूज 18 पंजाब हरियाणा में। मैं आपके साथ कुलदीप भारद्वाज। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे चंडीगढ़ से, जहां प्रदर्शन किया जा रहा है। कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है, आपको सीधा वहां लेकर चलते हैं। तो तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं, आप देख सकते हैं कि प्रदर्शन किया जा रहा है और चंडीगढ़ में कांग्रेस का ये बड़ा प्रदर्शन दिख रहा है। आपको बता दें, कांग्रेस का ये प्रदर्शन है। चंडीगढ़ की तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं। आपको बता दें, बीते कल यूथ कांग्रेस ने आई समिट में भारत मंडपम में विरोध किया था भारत और यूएस ट्रेड डील को लेकर, जिसके बाद बीजेपी ने भी आज मोर्चा संभाला। कई जगहों पर प्रदर्शन किया गया और अब कांग्रेस का ये प्रदर्शन चंडीगढ़ में देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहां बीजेपी ने मोर्चा संभाला है और मांग कर रहा है कि जो यूथ कांग्रेस ने प्रदर्शन किया था वो उसको लेकर माफी मांगी जाए, वहीं अब कांग्रेस का ये प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। चंडीगढ़ में कांग्रेस का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। चंडीगढ़ की ये तस्वीरें हैं। मेरे सहयोगी विनेश कटारिया हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। जी विनेश, ये एक प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। दरअसल जब से यूथ कांग्रेस ने प्रदर्शन किया है उसको लेकर तब से जो है कांग्रेस जो है प्रदर्शन कर रही है। क्या अपडेट है इस पर? ਕੁਲਦੀਪ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਰਕਰ ਹੈ ਉਹ ਦਫ਼ਤਰ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਸੀਗੇ, ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਹਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਵਾਟਰ ਕੈਨਨ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਤਿਆਰ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾੜਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਤੇ ਰੋਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਲਕਾ ਫੁਲਕਾ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ ਵੀ ਹੋਈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਹਲਕਾ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾੜਾਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਅੱਡੇ ਤੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਰਕਰ ਹੈ, ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਲੱਗੇ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਾ ਵਧਿਆ ਜਾਵੇ। ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹਨ ਤੋਂ 2-4 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾੜਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾੜਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਤੇ ਹਜੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਸਤਰਕ ਹੈ, ਅਲਰਟ ਤੇ ਹੈ ਤੇ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉਹ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ बैरिकेडिंग करके उन्होंने रोक के रखा हुआ है। विनेश, सवाल ये है कि बैरिकेडिंग की गई है, यूथ कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन ये जाना कहाँ चाह रहे हैं? ਕੁਲਦੀਪ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਣ ਦਾ ਪਲਾਨ ਸੀਗਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦਫ਼ਤਰ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ। ਪਲੈਨਿੰਗ ਇਹ ਸੀਗੀ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦਫ਼ਤਰ ਤੱਕ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਹਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵਾਟਰ ਕੈਨਨ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤਗੜੀ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਆਪਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਹ ਵਰਕਰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵਾਟਰ ਕੈਨਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ, ਸਾਰੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਚ.ਐਸ. ਲੱਕੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜੇ ਆ ਉਹ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਜੇ ਵੀ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਲਰਟ ਤੇ ਹੈ ਪੁਲਿਸ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾੜਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਜਿੱਥੇ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਜਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ है। जी विनेश, जो लक्की हैं वो क्या कह रहे हैं, क्या आप सुना सकते हैं? कुलदीप, आपका सवाल नहीं मैं सुन पाया। जैसे यूथ कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे हैं, लक्की यहाँ पर मौजूद हैं जो अध्यक्ष हैं यूथ कांग्रेस के, ये क्या कह रहे हैं कार्यकर्ताओं को? इनका ये कहना है कि जो ट्रेड डील हुई है उसमें कॉम्प्रोमाइज हुआ है, पीएम इज कॉम्प्रोमाइज। इन्होंने जिस नारे के तहत ये प्रदर्शन कर रहे हैं उसमें इन्होंने मेंशन किया कि पीएम कॉम्प्रोमाइज है, इसलिए ये बीजेपी दफ्तर का घेराव करना चाहते हैं। जो इंडो यूएस ट्रेड डील हुई है उसको लेके इनका विरोध प्रदर्शन था और ये बीजेपी दफ्तर की तरफ जाना चाह रहे थे, पर फिलहाल इनको यहीं पे रोक दिया गया है। विनेश, आप लक्की तक पहुंच सकते हैं, आप उन तक पहुंचने की कोशिश कर सकते हैं इस वक्त? आप सुन पा रहे हैं मुझे? विनेश, आवाज आ रही है मेरी? जी बिल्कुल। तो यूथ कांग्रेस कार्यकर्ता जो हैं
प्रदर्शन कर रहे हैं, विरोध किया जा रहा है ट्रेड डील का, भारत यूएस के बीच जो ट्रेड डील हुई है। और इस बीच चंडीगढ़ में भी यूथ कांग्रेस कार्यकर्ता जो हैं वो बीजेपी दफ्तर का घेराव करने की तैयारी में थे, वहां जाने का इनका प्लान था, लेकिन पहले ही इन्हें रोक दिया गया, बैरिकेडिंग कर दी गई है पुलिस की तरफ से। पहले ही पूरी तैयारी रखी गई थी, पुलिस जो थी पहले से तैयार थी इस तरह की स्थिति को संभालने के लिए, और बैरिकेडिंग करके चंडीगढ़ कांग्रेस कार्यालय के बाहर जो मुख्यालय है चंडीगढ़ कांग्रेस का, वहीं पर इन्हें रोक दिया गया था। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं, आप देख सकते हैं कि वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है, झड़प होती हुई हल्का बल प्रयोग करते भी वो नजर आ रहे हैं, झड़प होती नजर आ रही है। और इस दौरान यूथ कांग्रेस कार्यकर्ता जो है वो बैरिकेडिंग हटाकर उन्हें गिराते भी नजर आ रहे हैं। हल्की धक्का मुक्की भी यहाँ पर होती नजर आ रही है यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ पुलिस की, क्योंकि एक तरफ से इनकी जो योजना थी वो बीजेपी दफ्तर तक पहुंचने की थी, बीजेपी कार्यालय तक पहुंचकर उसका घेराव करने की थी, और जो ट्रेड डील भारत यूएस के बीच हुई है उसका विरोध करने की ये तैयारी में थे, पूरी तरह से प्रदर्शन की तैयारी में थे। लेकिन पुलिस ने मोर्चा संभालते हुए बैरिकेडिंग कर दी थी और हल्का बल प्रयोग भी यहाँ पर हुआ है, धक्का मुक्की भी हुई है जो यूथ कांग्रेस कार्यकर्ता हैं उनके साथ, और यहाँ से डिस्पर्स करने के लिए जो यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं उन पर हल्का वाटर कैनन का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं, आप देख सकते हैं, जिसके बाद जो है स्थिति को काबू में करने की कोशिश की जा रही है पुलिस की तरफ से, हर तरह से काम किया जा रहा है। वहीं जो यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो भी लगातार बैरिकेडिंग को हटाने की कोशिश करते दिखाई दे रहे हैं। ये सारा जो मामला है बीते कल भारत मंडपम में एआई समिट के बाहर यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन से शुरू हुआ था। यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और भारत यूएस ट्रेड डील का विरोध करते वो नजर आए थे। इस दौरान उन्होंने हाथ में टी शर्ट पकड़ी हुई थी, सफ़ेद कलर की ये टी शर्ट थी, जिस पर एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो डोनाल्ड ट्रंप हैं उनकी तस्वीरें थी, और इस ट्रेड डील के विरोध करते हुए कहा था कि जो है भारत जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो चुका है। इसी के विरोध में आज बीजेपी ने भी जगह जगह पर प्रदर्शन किए और कांग्रेस से माफी की मांग की, राहुल गांधी से माफी की मांग की। और अब चंडीगढ़ की ये तस्वीरें हैं जहां पर यूथ के साथ कॉम्प्रोमाइज कर रही है। किस तरह से कॉम्प्रोमाइज कर रही है? यूएस डील को देख लो, आज जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने टैरिफ के ऊपर, वहां का अमेरिका का सुप्रीम कोर्ट बात कर रहा है, पर उसकी बात ने सुनकर ही हमारे सरकार यूनिलैटरल वो करने की कोशिश कर रही है और पूरी तरह से कॉम्प्रोमाइज है। और मैं समझता हूं कि आज का प्रोटेस्ट मोदी सरकार के खिलाफ है। आपको नहीं लगता आपके कार्यकर्ता हिंसक हो रहे हैं? नहीं, हिंसक नहीं हो रहे, बिल्कुल आगे जाना चाह रहे हैं और हमें रोका जा रहा है और लाठीचार्ज किया गया और पानी मारा। कहाँ आगे कहाँ जाना चाह रहे हैं? भाजपा के दफ्तर की तरफ। भाजपा के दफ्तर का घेराव करेंगे आप? ठीक है, तो हल्ला बोल यूथ कांग्रेस का ये देखने को मिल रहा है। चंडीगढ़ की तस्वीरें हैं और सीधा प्लान था इनका बीजेपी दफ्तर का घेराव करने का। जी बिल्कुल, और ये तस्वीरें आ रही है स्क्रीन पर, आपकी हिरासत में लेने की कोशिश की जा रही है। प्रधान है ये चंडीगढ़ कांग्रेस के, जिन्हें हिरासत में लेने की कोशिश की जा रही है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं यूथ कांग्रेस कार्यकर्ता प्रदर्शन करने वाले थे, बीजेपी दफ्तर का घेराव करने वाले थे, लेकिन पुलिस ने बैरिकेडिंग की है और किसी तरह से स्थिति खराब ना हो इसका पूरा ध्यान रखते हुए हल्का बल प्रयोग भी किया गया है। यूथ कांग्रेस जो कार्यकर्ता है उनको हिरासत में भी लिया जा रहा है, तस्वीरों में दिख रहा है, उनको हिरासत में लेने की कोशिश की जा रही है। भारत यूएस ट्रेड डील को लेकर यूथ कांग्रेस का ये हल्ला बोल है। सीधा उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि भारत कॉम्प्रोमाइज हो चुका है, भारत यूएस की जो ट्रेड डील हुई है, और इसी को लेकर बीते कल भी कांग्रेस ने प्रदर्शन किया था, जिसके खिलाफ आज बीजेपी ने भी मोर्चा खोला है। और अब चंडीगढ़ में भी बीजेपी के दफ्तर के घेराव करने की तैयारी में कांग्रेस, यूथ कांग्रेस जो था वो तैयारी में था, लेकिन बैरिकेडिंग की गई, हल्का बल प्रयोग किया गया और कई लोगों को हिरासत में लेने की भी कोशिश की जा रही है। तस्वीरों में आप किया था
हम भाजपा के दफ्तर की तरफ जा रहे थे, मगर रास्ते में हमारे साथियों को रोका गया, पानी की बौछारें डाली गई, लाठीचार्ज किया गया और आज हम शांतिमय ढंग से जाके भाजपा के दफ्तर का घेराव करना चाहते थे, पर आज हमारे लोगों को रोका गया है। पर इससे हम डरने वाले नहीं है, घबराने वाले नहीं है। कांग्रेस पार्टी इस मोदी सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ आवाज उठाती थी, उठाती है और उठाती रहेगी। कोई घायल भी हुआ है? देखिए, कुछ बच्चों को चोटें लगी हैं, यूथ कांग्रेस के बच्चों को, पर कोई बात नहीं, हम उनसे डरने वाले नहीं, हम घबराने वाले नहीं। तो वहीं देश भर में यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन के विरोध में बीजेपी भी सड़कों पर उतर चुकी है। एआई समिट में यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन को देश का अपमान बताते हुए दिल्ली से लेकर हरियाणा तक बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस को बैन करने तक की मांग उठाई गई। दिल्ली के भारत मंडपम से उठी प्रदर्शन की ज्वाला अब दिल्ली से लेकर हरियाणा की सड़कों तक पर धधक रही है। दिल्ली में बीजेपी ने कांग्रेस के मुख्यालय पर ही पहुंचकर जोरदार प्रदर्शन किया, तो वहीं हरियाणा में कई जगहों पर राहुल गांधी के पुतले जला दिए गए। पंचकुला में बीजेपी ने कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए राहुल गांधी और कांग्रेस नेताओं पर जमकर भड़ास निकाली। जिस प्रकार से भारत ने तरक्की की है, वो सारा नक्शा पेश करने के लिए जो आयोजन किया जा रहा था, वहां राहुल गांधी के कुछ गुंडों ने जिस प्रकार से नग्न होकर प्रदर्शन किया, भारत माता का अपमान किया, जिस प्रकार से देश की मस्तिष्क को नीचा करने का काम किया, इससे बड़ा दुष्कर्म कोई और हो नहीं सकता। जिसकी जितनी निंदा की जाए बहुत कम है। इस पूरे विरोध प्रदर्शन और सियासी विवाद की शुरुआत दिल्ली के एआई समिट में यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन से हुई है। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता एआई समिट में पहुंचे, क्यूआर कोड के जरिए रजिस्ट्रेशन किया। अंदर घुसते समय स्वेटर और जैकेट में थे, लेकिन जैसे ही हॉल नंबर 5 के लॉबी एरिया में पहुंचे तो स्वेटर और जैकेट उतार दी। इसके बाद यूएस डील को लेकर प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने शर्टलेस होकर पीएम के खिलाफ नारेबाजी भी की, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। यूथ कांग्रेस के इसी प्रदर्शन के खिलाफ बीजेपी का गुस्सा फूटा और कांग्रेस को जमकर घेरना शुरू कर दिया। बीजेपी ने कहा कांग्रेस देश की इमेज खराब कर रही है, लेकिन कांग्रेस ने कहा कि यूथ कांग्रेस ने गलत नहीं किया। बीजेपी ने कहा कि ये भारत के हितों पर हमला है, लेकिन कांग्रेस ने इसे देश विरोधी मानने से इनकार कर दिया। वहीं जब बीजेपी ने इसे राजनीतिक विरोध बताया तो कांग्रेस ने इसे युवाओं की आवाज बता दिया। इसके अलावा बीजेपी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस देश के बारे में नहीं सोचती, जिस पर कांग्रेस ने कहा कि इसमें विवाद जैसी कोई बात ही नहीं है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने भी कांग्रेस के इस प्रदर्शन को देश के खिलाफ बताया और आरोप लगाया कि कांग्रेस देश को अपमानित करने की साजिश कर रही है। कांग्रेस राहुल गांधी कितनी नीचे चली जाएगी। ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਮ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ 11 ਵਰਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ 140 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਹਜਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਕੀ ਇਹ कार्यक्रम किस प्रकार दिया ये गल्ला करते हैं। फिलहाल शर्टलेस प्रदर्शन पर नया सियासी शोर शुरू हो चुका है, जिसमें देश का अपमान वर्सेस विपक्ष का काम वाली तकरार छिड़ी हुई है। अब देखना यही होगा कि शर्टलेस प्रदर्शन और कपड़ा फाड़ सियासत की ये तकरार आखिर कितनी दूर तक पहुंचती है। पंचकुला से तारा ठाकुर, ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 पंजाब हरियाणा। उधर सोनीपत में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने देवीलाल चौक पर इकट्ठे होकर प्रदर्शन किया, कांग्रेस के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान राहुल गांधी के इस्तीफे की मांग भी हुई और कांग्रेस को बैन करने की मांग भी उठाई गई। दिल्ली के अंदर अंतर्राष्ट्रीय स्तर की एआई समिट के दौरान राहुल गांधी के दिशा निर्देश पर जिस तरह से कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने
पदाधिकारियों ने मंडपम में पहुंचकर नगन होकर प्रदर्शन किया है और जिससे ये साफ हो गया है कि राहुल गांधी और उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं नेताओं की मानसिकता जो है पूरी तरह से राष्ट्र विरोधी है और जिस तरह का प्रदर्शन उन्होंने करके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है भारत का मान सम्मान घटाने का काम किया है, नीचा दिखाने का प्रयास किया है। तो वहीं कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी ने भी यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन को लेकर कांग्रेस को निशाने पर लिया और कहा कि देशवासियों को समझ में आ रहा है कि कांग्रेस के लोग किन लोगों से प्रेरित होकर यह काम कर रहे हैं। रचनात्मक भूमिका करे तो देश का सम्मान बढ़ता है और यदि विपक्ष विध्वंसक राजनीति करे तो देश का अपमान भी होता है। आप सभी पूरी दुनिया इसको देख रही है, पूरा दुनिया का मीडिया भी देख रहा है, पूरी दुनिया को ये चीजें समझ भी आ रही हैं कि वो लोग किन से प्रेरित होकर इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। मिशन पंजाब पर मुख्यमंत्री नायब सैनी ने भी चंडीगढ़ में पंजाब बीजेपी में कार्रवाई करने की बात कही और इसके साथ ही बीजेपी में उन्होंने बड़ी ज्वाइनिंग भी करवाई। अमृतसर में जनसभा को सीएम ने संबोधित किया। आप सरकार पर भी उन्होंने जमकर हमला किया है। नशा, अपराध और भ्रष्टाचार पर आम आदमी पार्टी को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने घेरा और कहा कि कांग्रेस पर भी मुख्यमंत्री ने यहां पर निशाना साधा। सरकार ਦੇ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਬਤਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਪਿਛੜਿਆ ਕਿਉਂ ਹੈ ਇਹ ਬਤਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਕਰੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪਿਛੜ ਗਿਆ ਉਹ ਕਿਉਂ ਪਿਛੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਤਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇ ਆ ਕਰਕੇ ऐसी गल्लां ना करे जिससे कि सजा बाग दिखाने वाली गल्लां भ्रष्टाचार जिन्ना इन्हां दी सरकार दे विच हुआ उहदे ज्यादा भ्रष्टाचार आम आदमी दी सरकार दे विच है। अज तक स्थिति ऐसी आ गई है आम आदमी दे विच तां कि अगर किसी लोकी ने अपना कोई काम कराने लई ऑफिस दे विच जाना पैंदा तो उहदे भी पैसे लगण दे बिना पैसे दे काम नहीं होंदे। पंजाब दे विकास लई पंजाब दे युवाओं दे लई पंजाब दे किसानां लई पंजाब दी महिलाओं लई पंजाब दे गरीब लई कोई नीति योजना बनाने दा काम इन्हां ने नहीं कीता। इन्हां ने भ्रष्टाचार नूं बढ़ाउण दा काम कीता। युवाओं दे लई इन्हां ने नशे नूं पढ़ाउण दा काम कीता। महिलाओं नूं इन्हां ने सुरक्षा देने दा काम कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी ने किया। अज पंजाब दा की हाल हो गया। एक आम आदमी कि जेड़े अगर ऑफिस दे विच जा करके अपना काम कराउण दा कोशिश करता है बिना सेवा करे उसका काम नहीं होना। ये आम पंजाबियां दी गल है। अज पंजाब दे लोकां ने मन बना लिता है कि कांग्रेस भी वेख लीती है और अब आम आदमी भी वेख लिता है कि अगर पंजाब नूं आगे बढ़ाउणा है पंजाब नूं नंबर 1 दा सूबा बनाना है तो नंबर 1 दा सूबा नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता